Good morning, everyone. Myself, Divya Agarwal, working as an assistant professor in Department of Chemical Engineering, will discuss about the numericals of Unit 1 of Mechanical Operation. Unit 1 is about the particle technology, which includes the topics such as sphericity, size reduction, screening, and the size analysis. So, first topic is the sphericity, from which numericals can came in the exam, and then the size analysis numericals and the screening numericals. So we have to prepare the numericals from the three topics in unit number 1. First one is the sphericity, second one is the size analysis, and third one is the screening. Sphericity numericals are very simple. In that we have to calculate either sphericity or the equivalent diameter by the given data. In size analysis, we have to calculate the various parameters like the different dimensions, that is ds bar, dw bar, dv bar, aw bar, nw, and etc. In screening, we have to calculate the efficiency, that efficiency in terms of overflow and efficiency in terms of underflow. Fine, so I will start from the very first question. I have prepared a small test for the numericals of unit number 1. So our first question is, what does 100 mesh screen means? I have already discussed in my video lecture of unit number 1 that what is a mesh. Mesh is basically a number of openings per linear inch. Students, this is not a numerical, but this is a conceptual question which can be asked in 2 numbers. Okay. Next question, we have to calculate the equivalent diameter and sphericity of conical solid of diameter 2 mm and height 5 mm. As I have told you that in the questions of sphericity, we have to calculate sphericity and the equivalent diameter. So I will provide you a solution of this numerical also. You can see here that it was given that the diameter of cone is 2 mm and height is 5 mm. And we have to calculate the equivalent diameter and the sphericity. Students, we know the formula for sphericity will be 6 Vp upon dP into Sp. Here Vp is the volume of the particle, that is the volume of cone. We will calculate it. Then Sp is the surface area of cone. We will put the formula for the cone and we will calculate it. Next, we have to calculate the equivalent diameter. Now to calculate the equivalent diameter, we will put volume of particle equals to volume of sphere. Volume of particle we have calculated above, and we know that volume of sphere is pi by 6 dp cube. So from here we will calculate the value of dp, and by putting all these value in the formula of sphericity, we will find out the sphericity. Students, here particle is given as cone. If the particle is cylinder, then the formula of volume and surface area will change. If the particle is cube, then it will change. Rest of the process will be same. Okay. Now, next question is, we have to calculate the mean diameters of the following size distribution. I have told you that we have to calculate the size analysis. In size analysis, we have to find out the various डायमेंशंस. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको वेट परसेंट गिवन था और डीपीआई गिवन था. तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसकी एक टेबल बना लेंगे. आपको वेट परसेंट पता है, उससे हम एक्सआई निकालेंगे अपॉन 100 करके. डीपीआई से डीपीआई बार निकाल देंगे, dp1 प्लस dp2 बाई 2 करके. और उसके बाद हम ये फॉर्मूले लिख लेंगे यहाँ पे कि डी डब्ल्यू बार का फॉर्मूला क्या है, डी एस बार का और डी वी बार का. जो फॉर्मूले में हमें वैल्यूज़ चाहिए वही हमने कॉलम्स बनाए, उनकी कैलकुलेशन करी और अपना आंसर सॉल्व करके निकाल दिया. स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है और थोड़ी अपनी स्पीड अच्छी रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत स्कोरिंग है लेकिन थोड़े से लेंदी हैं. सो प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए, जिससे कि आपके ये करेक्ट हो और आपके टाइमली सॉल्व हो जाएं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है. ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सेमेस्टर एग्जाम में. ये आपमें आपकी सब चीज़ें आ जाती हैं, सारी डायमेंशंस आ जाएंगी, ए डब्ल्यू आ जाएगा, एन डब्ल्यू आ जाएगा. ए डब्ल्यू इज़ द स्पेसिफिक एरिया एंड एन डब्ल्यू आर द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो हम इसके लिए फिर से वही प्रोसेस करेंगे. मैंने क्या किया, एक इसके लिए टेबल बना ली. आप ये टेबल देख सकते हैं.
टेबल में मेरे को मैश नंबर गिवन था और DPI गिवन था, तो मैंने उससे DPI से DPI बाहर निकाल दिया, वहाँ पे मुझे XI गिवन था। उसके बाद मुझे जो जो वैल्यू निकालनी, जैसे AW की निकालनी थी, NW की निकालनी थी, DV बार, DS बार, DW बार, इन सब के मैंने फॉर्मूले लिखे। और मुझे जो जो कॉलम्स चाहिए थे, जैसे कि मुझे DS बार के लिए चाहिए XI अपॉन DPI बार, मैंने वो कैलकुलेट कर दिया। मुझे DW बार के लिए चाहिए XI इंटू DPI बार, मैंने वो कैलकुलेट कर दिया। DV के लिए मुझे चाहिए 1 अपॉन XI इंटू DPI क्यूब, मैंने ये लिख दिया। और ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैंने सारी कैलकुलेशंस करी और ये मेरा रिजल्ट आ गया। फाइन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ पे आपको स्फेरिसिटी निकालनी है क्यूब की। अब मैंने आपको बताया था जब आपका पार्टिकल क्या है, क्यूब, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला चेंज हो गया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला चेंज हो गया। फिर जो वॉल्यूम आया है, हमेशा उस वॉल्यूम को हम स्फीयर के वॉल्यूम से इक्वेट करके अपना DP निकालेंगे और देन फाई S निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपको जो गिवन है उसमें आपको स्फेरिसिटी निकालनी है, किसकी, सिलेंडर की निकालनी है। तो मैंने इस वाली सीरीज़ में तीन शेप्स इंक्लूड कर ली हैं, कोन इंक्लूड कर लिया है, सिलेंडर इंक्लूड कर लिया है और क्यूब इंक्लूड कर लिया है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा किसका है, सिलेंडर का है। अब सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है πr²h, वॉल्यूम होता है πr²h, मैंने वॉल्यूम निकाल दिया। देन मैंने उसका सरफेस एरिया निकाल दिया। देन मैंने उनके वॉल्यूम को स्फीयर के वॉल्यूम से इक्वेट किया और ये मेरी फाई S की वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो मीन्स मैंने यहाँ पे 2 टॉपिक्स के न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए हैं, स्फेरिसिटी के और साइज एनालिसिस के। अब हमारा एक टॉपिक बचा है, कौन सा, स्क्रीनिंग। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है मेरा उसी से है, स्क्रीनिंग से है। यहाँ पे आपको रिकवरी और रिजेक्शन निकालना है। अब रिकवरी और रिजेक्शन होता क्या है और किस टर्म्स में हम निकालते हैं वो आप देख लीजिए प्लीज़। रिकवरी होती है आपकी EA यानी एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ ओवरसाइज, और रिजेक्शन होता है आपका EB मतलब इफ़िशेंसी इन टर्म्स ऑफ अंडरसाइज। और आपका पूरा जो स्क्रीन इफेक्टिवनेस होती है दैट इज़ EA इंटू EB। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ गिवन थी और आपको मैश नंबर यूज़ करनी थी 6 मैश नंबर। तो आपने 6 मैश नंबर के डेटा को आपने ऐसे हाईलाइट कर लिया कि फीड वहाँ के लिए 1006 है, ओवरफ्लो ये है और अंडरफ्लो ये है। तो उसके बाद आपने क्या किया, XF की वैल्यू निकाली। आप XF फिर आपने क्या किया, इनका जो वर्टिकल है वर्टिकल सम कर लिया। तो XF निकालने के लिए हमने क्या किया, XF निकाल लिया, XG निकाल लिया और XB निकाल लिया। फिर हमने अपना EA का फॉर्मूला रखा, EA का फॉर्मूले से ये वैल्यू आ गई। फिर हमने EB का फॉर्मूला रखा, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और फिर हमने स्क्रीन इफेक्टिवनेस निकाल ली EA इंटू EB करके। क्लियर? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा साइज एनालिसिस का है। बेटा साइज एनालिसिस में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में डेटा गिवन होता है। जैसे कि आपने ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं, आपको सीधे से XI की वैल्यू गिवन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सीधे से XI की वैल्यू गिवन नहीं है। तो आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको XI और DPI ही चाहिए होता है किसी भी साइज एनालिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जो यहाँ पे आपका क्यूमुलेटिव मास था, आपने उससे एक्चुअल मास निकाला। एक्चुअल मास क्या होता है, फर्स्ट का तो 0 हो जाएगा, सेकेंड के लिए 2 - 1 यानी 60 - 0, देन 150 - 60 सो ऑन। उसके बाद हमने XI निकाल दिया। XI क्या होता है आपका, मास फ्रैक्शन, दैट इज़ मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास इसका सम कर देंगे हम, सेकेंड कॉलम का 360 आएगा। तो 0 अपॉन 360 किया, 0 आ गया, 60 अपॉन 360, इस तरह से हम निकाल देंगे। फिर आपको DP गिवन था, आपने DPI बार निकाल दिया और वही कॉलम्स निकाले अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको AW निकालना था। सबसे पहले AW का फॉर्मूला लिखेंगे और आप देखेंगे आपको क्या डेटा गिवन है, क्या डेटा गिवन नहीं है। आपको फाई S गिवन था, आपको डेंसिटी गिवन थी, उसके अलावा आपको क्या चाहिए, XI अपॉन DPI बार चाहिए। वहाँ पे आपको पार्टिकल साइज़ गिवन है और मास फ्रैक्शन गिवन है। तो आपने क्या किया, XI अपॉन DPI बार निकाल लिया और फिर पहले आप DPI निकालेंगे। DPI निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपको रेंज गिवन है 212 to 150, तो करेंगे 212 + 150/2, फिर 150 + 106/2। इस तरह से आप इसका एवरेज निकाल लेंगे और फिर XI अपॉन DPI बार आ जाएगा।
और ये सारी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे और आपको ये वैल्यूज़ अपनी मिल जाएंगी. तो स्टूडेंट, आई होप you are able to understand the numericals of unit number 1. By this we can summarize our unit number 1. If you have any doubt, you can just ask me. Wish you all the very best. Stay at home, stay safe, and keep your surroundings safe. Thank you so much.